Since today is Thursday, so we are going to kick off with our paper two again. So let's see. In our last session, we were talking about the relational operators. We talked about the variable names, the naming convention that we can use. We also talked about the data types that we are going to use in the paper two stuff. So now moving forward, आगे बढ़ते हैं आज थोड़ा सा और. And in today's session, we are going to kick off with first. You should know about the selection statements. So when we talk about the selection, so selection is something like, बच्चों, if you are given two options, two or more than two options, and you need to select one. So you need to choose one from those options. So that is called the selection stuff. Like आपके पास सीडर में भी you are having choice of multiple teachers. Among those teachers you select few. ठीक है. Similarly, मैंने उमर को भेजा एंड मैंने उमर को बोला उमर जाओ कैंटीन और मेरे लिए जाके लेज लेकर आओ. अगर लेज अवेलेबल नाउ देन ब्रिंग प्रिंगल्स. अगर प्रिंगल्स अवेलेबल नाउ तो ब्रिंग ताकीज. सो मैंने इनको तीन चार ऑप्शंस दे दिए यहाँ पे. सो व्हेनेवर वी आर हैविंग 2 to 3 options, so we go with the selection statements if you want to choose one. And in your syllabus आपके पास you are having two selection statements. One is called if then else and if. And the other one is called case of otherwise statement. Now, when we talk about these two selection statements, so हम लोग if then else को कब प्रीफर करते हैं बच्चों? when condition is complex. तो in that case हम लोग if then else को प्रीफर करते हैं. एग्जाम्पल मैंने बताया कि शाहजोब जाओ जरा कैंटीन जाओ. इफ चिप्स के अंदर लेज आर अवेलेबल एंड चॉकलेट के अंदर डेयरी मिल्क इज अवेलेबल, then bring aquafina for me. So over here the condition was quite complex. So whenever the condition is complex, we prefer if then else. And when we prefer case of otherwise, when we have too many options, when we have too many options for selection, we prefer case of otherwise. ठीक है. So इसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़े, now let's talk about iterations as well. Iterations क्या होती हैं आपके पास? They are actually called loops, or we call them as iterations. So when we talk about बच्चों iterations, loops, this is simply repetition of a task, repetition of instructions. I requested हारिस, मैं बोला हारिस जाओ बेटा ग्राउंड जाओ. मैं बोला जाओ ग्राउंड जाओ और ग्राउंड के 10 राउंड्स लगाओ. अब हारिस जाएंगे, ग्राउंड आया हारिस, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
सो एक ही टास्क क्या करा इन्होंने, बार 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 परफॉर्म करा. तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द कोडिंग पार्ट, अगर कोई आप प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है and you are performing that programming instruction again and again, so that is actually called loops in programming or iteration. तो मैंने यहाँ पे आप लोग को लिखवा भी दिया, loops क्या होते हैं आपके पास, repetition of a task. And when we talk about the loops, so आपके सिलेबस के अंदर बच्चों दो तरह के loops हैं. One loop is called unconditional loop and the other one is called conditional loop. Now when we talk about the unconditional loop, so unconditional loop बच्चों आपके पास सिर्फ एक ही आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फॉर टू नेक्स्ट. And when we talk about the conditional loop, so in your syllabus you are having two conditional loops. One is called post condition loop and the other one is called precondition loop. When we talk about the precondition loop, तो precondition loop आपके सिलेबस के अंदर एक ही है, that is while and while loop. Why this loop is called precondition बच्चों? Because first check condition, then loop runs. तो आपके भाई ये लूप बच्चों प्री कंडीशन इसलिए कहलाता है बिकॉज ये पहले कंडीशन चेक करता है और फिर ये आपके पास आगे बढ़ता है. सिमिलरली ये लूप आपका एंड होता है, ये लूप आपका एंड होता है, ends when condition is false. So precondition while do and while, पहले ये कंडीशन चेक करता है, देन ये लूप आपका रन होगा, एंड ये लूप एंड कब होगा, जब ये आपकी कंडीशन फॉल्स होती है. अच्छा, आई कैन सी के मैनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. आई नो बेसिक स्टफ है, आप लोग को पता है, ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. लेकिन बच्चों आई टोल्ड यू बिफोर के whenever I will be teaching any topic, I will be teaching from the grassroots level. मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आप लोग को वो टॉपिक, एवरी टॉपिक, बिकॉज देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनकी बेस कमजोर होगी, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने ओ लेवल के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं होगा. सो आई एम कैटरिंग एवरी स्टूडेंट, मैं हर स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल उनकी बेस कमजोर है तो वो भी वापस से रिकैप कर लें, रिकॉल कर लें और क्लास के साथ पैरेलल के अंदर रन हो. बिकॉज अभी हमें बहुत काम करना है पेपर 2 के अंदर, बहुत ज्यादा काम करना है. ठीक है, और पेपर 2 के सर मैं कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, जो मैं क्लास में करवाऊंगा दीज आर द नोट्स. मैं क्लास के अंदर पूरे पेपर 2 के नोट्स बनवाऊंगा बच्चों आप लोगों को. ठीक है, अभी तो हम आज के सेशन के अंदर 2-3 क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, बट इट दीज क्वेश्चंस विल गो टिल 200-300 इन क्लास. तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग पेपर 2 के, उतनी अच्छी आप लोग की पेपर 2 बच्चों इंप्रूव होता रहेगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा, बट वी आर गोइंग टू डू मैनी क्वेश्चंस. ठीक है, बिकॉज दिस इज पेपर 2 एक्चुअली, जो बच्चों का ग्रेड खराब करता है. पेपर 1 में स्टिल बच्चे कुछ ना कुछ करके नंबर स्कोर कर लेते हैं, बट दैट इज पेपर 2 जो आपका ग्रेड खराब कर सकता है.
सो वी आर गोइंग टू वर्क 200% ऑन पेपर 2. बहुत ज्यादा मेहनत करनी है हमें पेपर 2 के अंदर. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फील फ्री टू आस्क. मैं पेपर 2 के अंदर कभी भी बच्चों को इग्नोर नहीं करूंगा, बिकॉज बच्चों यहाँ के अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते पेपर 2. सर क्यों? बेटा रीजन इज every time you will be having a new scenario. That scenario won't be seen by Sir Mac. Sir Mac ने नहीं देखा हुआ होगा, किसी सर ने वो सिनेरियो नहीं देखा होगा. You need to deal with that scenario while, and you can deal with that scenario only if your basics are strong. ठीक है, तो हमेशा एक नया सिनेरियो होता है, हर क्वेश्चन एक नया सिनेरियो होगा आपके पास. और चले फिजिक्स हो गया आपके पास, मैथ्स हो गया, you are given the given set of formulas, you are giving the relevant theory about that topic. आप वो भी लिख दें तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाए शायद. बट ओवर हियर नो, पेपर 2 आपको हर सिनेरियो को बिल्कुल परफेक्टली प्लेस करना होगा, देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स. ओके उमर, वाइल एंड वाइल की एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी नहीं, लेकिन ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग थ्योरी देख रहे हैं. ठीक है, ओके, पीआरएम नहीं होता इसके अंदर बिल्कुल भी. पीआरएम नहीं होता हमारे पास यहाँ पे इन ए लेवल्स. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पीआरएम नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता. Okay, when we talk about बच्चों post condition loop, so we are having one post condition loop and that is called repeat until. This loop at least run once. Check condition at the end of loop. Ends, ये loop end होता है बच्चों when आपकी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए. So when your condition is true, so ये loop आपका क्या होता है, end हो जाता है. And when we talk about बच्चों for to next, so this is, ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलता है, फिक्स्ड number of times iterate. So I think we are done with the theory part. अभी वैसे आगे पढ़ते रहेंगे और भी. So without wasting any time बच्चों, अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं. ठीक है, let's start. The first question is a simple one. We need to input three numbers and display the highest. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन बच्चों, एक चीज आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, दिस इज पेपर 2, दिस इज ए लेवल्स. आप लोगों के जो भी ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स बने हुए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप लोग को वेरी करेंगे, कुछ चेंज होंगे, बट यू नीड टू फॉरगेट वॉट एवर यू हैव लर्न इन योर ओ लेवल्स. जो फॉर्मेटिंग, जो सिंटैक्स, जो आपने याद किया था, भूल जाए. जो मैं आप लोग को फॉर्मेटिंग बताऊंगा, आप लोग को ये याद रखनी है. सर ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों इन ए लेवल्स टीचर्स आर प्रोवाइडेड अ गाइडेंस ऑफ द सूडो कोड. हमें एक गाइड प्रोवाइड की गई है, दैट इज कॉल्ड द P2 गाइड फॉर टीचर्स, एंड वी नीड टू फॉलो. हम लोग को आपको प्रिपेयर करवाना है फॉलोइंग दैट गाइड. हमें वो गाइड फॉलो करते हुए आप लोग को क्या करवाना है, प्रिपेयर करवाना है. सो बच्चों यू नीड टू फॉलो दैट गाइड. अब आपके पास इस गाइड के अंदर बहुत सारी चेंजेस हैं. लाइक पहले आप लोग क्या करते थे, फॉर डिस्प्लेइंग आप लोग प्रिंट भी यूज कर लेते थे, आप लोग आउटपुट भी यूज कर लेते थे, आप लोग डिस्प्ले भी यूज कर लेते थे. बट ओवर हियर
हम लोग कुछ स्पेसिफिक वोकैबुलरी के साथ ही काम करेंगे, स्पेसिफिक इंडेंटेशन के साथ ही काम करेंगे, दैट यू नीड टू फॉलो। ठीक है। यस अफनान, फॉर्मेटिंग जो आप लोग को जो आपको करवाई गई थी ओ लेवल्स के अंदर, दैट वाज नॉट रॉन्ग एक्चुअली। देखो सूडो कोड्स आर नेवर रॉन्ग। सूडो कोड्स आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं कि हाउ दिस टास्क विल बी परफॉर्म, सो दैट दे कैन नॉट बी रॉन्ग। वो गलत नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आप कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं, सो दे आर राइट। बस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर थोड़ा सा एग्जामिनर ने बोला है कि भाई आपको इंडेंटेशन का, चीजों का ख्याल रखना होगा, दैट्स इट। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स यहाँ पे इनपुट करवाने यूजर से, एंड वी नीड टू डिस्प्ले द हाईएस्ट नंबर। ठीक है। सो लेट्स सी। मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फिर मैं बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस को कैटर करूंगा। तो लेट्स सी। मैंने यहाँ पे बच्चों 3 नंबर्स डिक्लेयर करवा दिए। फर्स्ट लेट्स से डिक्लेयर num1, num2, num3, and I keep the data type as integer. Now I ask the user to enter the number. तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया, एंड दैट मैसेज इज आउटपुट एंटर 3 numbers. बच्चों दिस मैसेज इज एक्चुअली कॉल्ड, जो आप लोग मैसेज यूजर के लिए डिस्प्ले करवाते हैं ऑन स्क्रीन, सो दिस मैसेज इज एक्चुअली कॉल्ड prompt message. Now I applied the input mechanism. Input num1, num2 and num3. तो मैंने यहाँ पे तीनों नंबर बच्चों क्या करवा लिया, इनपुट करवा लिया आफ्टर डिक्लेयरिंग। अब ये यूजर की मर्जी है, whatever the value user is going to enter for number 1 हमारा कंसर्न नहीं है, whatever the user is going to enter the value for num2, it's none of our concern, whatever the value user is going to enter for num3, this is not our concern। वो कुछ भी एंटर कर सकता है, यूजर एंटर करेगा। ठीक है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करी बच्चों, इफ मुझे हाईएस्ट नंबर डिस्प्ले करवाना है, मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक इफ की कंडीशन अप्लाई कर दी। इफ num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3। तो बच्चों व्हाट दिस एंड ऑपरेटर इज डूइंग ओवर हियर, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है आपके पास, और ये सिंपली क्या करता है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करवाता है आपको चीजों को। व्हाट डज दिस मीन सर? देखो आपके पास ये आपकी कंडीशन थी पहली, कंडीशन 1 एंड दिस वाज द कंडीशन 2। अगर कंडीशन 1 मतलब आपकी क्या है, फॉल्स है, 0 है, और कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 इंटू 0, तो आपको पता है रिजल्ट क्या आना है आपका, दैट विल बी फॉल्स। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, तो स्टिल आपका रिजल्ट क्या आना है, 0। मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई के अंदर तो यही होता है ना आपके पास। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट क्या आना है, अगेन 0 आएगा। लेकिन इफ योर बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इज द ऑपरेशन बच्चों फॉर द एंड ऑपरेटर। दोनों कंडीशंस आपकी यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, तो आपका रिजल्ट सक्सेसफुल होगा। दिस मींस दिस कंडीशन शुड बी ट्रू, ये कंडीशन भी आपकी ट्रू होनी चाहिए, एंड दिस कंडीशन शुड बी ट्रू। तो बच्चों कॉमन सेंस है, अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, एंड नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, दैट विल बी नंबर 1। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड देन आउटपुट num1। नाउ बच्चों यू कैन सी द इंडेंटेशन, देखो जरा ये गौर करो,
मैंने इफ यहां लिखा, उसके बाद मैंने देन उसके अंदर लिखा, एंड देन मैंने आउटपुट क्या किया और फर्दर उसके अंदर करा। तो ये इंडेंटेशन, ये अलाइनमेंट आप लोग को फॉलो करना होगा अपने एग्जाम के अंदर। यू नीड टू फॉलो दिस इंडेंटेशन, यू नीड टू फॉलो दिस अलाइनमेंट। अब अगली कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे बच्चों। द नेक्स्ट कंडीशन वाज else if this is the next condition, else if num2 is greater than num1 and num2 is greater than num3. Num3, then output num2. So बच्चों this is the second condition. else if हम लोग यूज करते हैं अगर कोई और कंडीशन हो। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है, पहली वाली इफ वाली, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव अप्लाइड, तो आपके पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा एंड आपका लूप, आपका ये सॉरी आपका ये स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। अगर आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है, दिस वन, अगर ये सॉरी फॉल्स है, तो हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो हम लोग ये आउटपुट करेंगे आपके पास, और फिर आपका लूप क्या, आपका ये सॉरी अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड रॉन्ग वर्ड, आपका ये स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। अगर आपके पास बच्चों नंबर 1 भी नहीं बढ़ा और नंबर 2 भी नहीं बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है देन नंबर 3 विल बी द लार्जेस्ट। सो इन दैट केस हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एल्स आउटपुट num3। और यहीं पे बच्चों मैंने अपना स्ट्रक्चर एंड कर दिया। देखिए अलाइनमेंट देखें, ये इफ था, ये एल्स इफ था, इसी के अलाइनमेंट में आपके पास यहाँ पे एंड इफ भी आ जाएगा। सो बच्चों अगर आपका नंबर 1 बड़ा होगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे और डिस्प्ले करवाने के बाद इट विल बी एंड इफ। अगर आपका नंबर 2 बड़ा होगा, आप यहाँ से नीचे आ जाएंगे, आप ये डिस्प्ले करवाएंगे और आपके पास एंड इफ हो जाएगा। और आपके पास ना नंबर 1 बड़ा है ना नंबर 2 बड़ा है, फिर आप लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू डिस्प्ले नंबर 3। सो दिस इज हाउ बच्चों दिस इफ देन एल्स स्टेटमेंट वर्क्स। सो हमने क्या किया इस कोड के अंदर, व्हाट वी डिड, we asked the user to enter 3 different numbers, यूजर ने नंबर्स एंटर करे, we didn't apply any validation check over here, बाद में अप्लाई करेंगे। आफ्टर दिस हमने क्या किया, अगर नंबर 1 बड़ा है तो we displayed that number, अगर नंबर 2 बड़ा है we displayed that number, else अगर नंबर 1 भी नहीं बड़ा नंबर 2 भी नहीं बड़ा तो इट्स एन ऑब्वियस कि नंबर 3 बड़ा है, हमने नंबर 3 को क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बच्चों मुझे आप लोग बताएं जरा कि आप लोगों ने जो ओ लेवल्स में कोड देखा था और इस कोड में क्या एक डिफरेंस आप लोगों को मेजर नजर आ रहा है। जब नो इनिशियलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी ओवर हियर, num3 शुड बी इन अनदर एल्स इफ, नहीं ऑन अगर नंबर 1 नहीं बढ़ा नंबर 2 नहीं बढ़ा तो इट्स एन ऑब्वियस बात कि नंबर 3 विल बी द लार्जेस्ट वन। सो मैंने डायरेक्ट एल्स के ऊपर उसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ओके। मुझना ने हमें यहाँ पे बताया कि सर एक तो अलाइनमेंट हमारी लिए नई चीज है, सेकंड शी इज टेलिंग के सर हम इनपुट से पहले यहाँ पे आउटपुट करवा रहे हैं। हम पहले क्या करते थे, शायद मे भी पॉसिबल ये इनपुट स्टेटमेंट के अंदर ही प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवा के इनपुट लेते थे आप लोग। तो बच्चों दैट इज रॉन्ग, दैट इज ओल्ड थ्योरी। अब आप लोग ये काम नहीं करेंगे। अगर आपको कोई मैसेज करवाना है, पहले प्रॉम्प्ट आप लोग अलग से करवाएंगे डिस्प्ले एंड देन यू आर गोइंग टू टेक इनपुट। ठीक है, ओके। राविश क्या बता रही है, लेट्स सी। अरीशा, यस अरीशा, हमने यहाँ पे मैंने अभी रैंडमली कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैंने बस अब बता दिया कि वी आर गोइंग टू टेक इट एज इंटीजर्स। ठीक है, वी आर कंसीडरिंग द नंबर्स एज इंटीजर्स। नहीं, जवाब नेसेसरी है, किया करो, प्रॉम्प्ट्स आर नेसेसरी, जरूरी चीज है ये आपके पास।
वेयर इज राविश हसन? एग्जैक्टली हसन ने पकड़ ली, आइडेंटिफाई कर ली जो बात मैं करना चाह रहा था यहाँ पे। वासिक वो दैट डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर, तो यहाँ पे लगा लो दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर कंडीशन। लाइक लेट्स से 2 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो इस केस में क्या होगा? आपका सेकंड वाला नंबर डिस्प्ले होगा, नॉट द फर्स्ट वन। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते तो फिर आपके पास पहला वाला डिस्प्ले हो जाता। तो ये तो चीजें चलती रहती हैं आपके पास। ठीक है, आसान। आपको भी आई थिंक आंसर मिल गया होगा इस बात के ऊपर। राविश ने सिर्फ वी बोला है। व्हाट वी मतलब? आपका कोई क्वेश्चन मुझे समझ में आया यहाँ पे। बच्चों लेट्स सी। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। हसान ने ये चीज आइडेंटिफाई करी, अच्छी बात है। बच्चों, ऑल द कीवर्ड्स इन सूडो कोड्स विल बी कैपिटल। सर क्या मतलब? तो बच्चों देखो, डिक्लेयर कीवर्ड था कैपिटल, इंटीजर कीवर्ड था कैपिटल, आउटपुट कैपिटल, इनपुट कैपिटल, दीज आर द कीवर्ड्स। इफ कैपिटल, देन कैपिटल, आउटपुट कैपिटल, एल्स इफ कैपिटल, देन कैपिटल, एल्स कैपिटल। मैं तो रैपर बन गया। एंड इफ भी क्या हुआ आपका कैपिटल। तो ऑल द कीवर्ड्स इन सूडो कोड्स विल बी बच्चों कैपिटल। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो सारे कीवर्ड्स आपके पास क्या होंगे? दे विल बी कैपिटल इन सूडो कोड्स। ठीक है, अच्छी बात है। राविश बता रही है कि सर वी वर डूइंग दिस कैपिटलाइजेशन इन ओ लेवल्स एज वेल। तो आपके टीचर अच्छे थे, इसका मतलब वो आपको पहले से ये प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो अच्छी बात है। लेकिन ओ लेवल्स में इट वाज नॉट कंपलसरी। अगर आप लोअर केस में भी कर दो, एग्जामिनर छोड़ देता था। लेकिन ओवर हियर बच्चों, यू नीड टू फॉलो दीज रूल्स। ठीक है। एल्स देन के साथ आता है बच्चों। एल्स जो है वो अलाइनमेंट जो है वो देन के साथ होती है। देन 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 एल्स। तो देन और एल्स की अलाइनमेंट सेम होती है, एंड इफ और एल्स इफ की अलाइनमेंट एक होती है। ठीक है हाशिर, मलिक। अच्छा जी, अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, पेपर टू आपको क्या सिखाता है? पेपर टू सिखाता है आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। वेन एवर यू आर इन अ प्रॉब्लम, आप लोग को सॉल्व करने की अप्रोच सिखाता है ये। तो लेट्स से एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। अभी 200 तक भी चले जाएंगे हम लोग देखते ही देखते। सो इनपुट a number and display if that number is positive or negative. Note, consider 0 as positive. तो बच्चों अब देखिए, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। मुझे एक नंबर चाहिए, मुझे जज करना है उस नंबर को कि इधर दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चों, हाउ आई एम गोइंग टू चेक दैट? कैसे चेक करूंगा मैं? उमर बेटा, एंड वाइल की अभी एग्जांपल बहुत करेंगे, अभी टॉपिक ही नहीं हमारा एंड वाइल। अभी इफ देन एल्स कर रहे हैं, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स फॉर लूप, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स केस ऑफ अदरवाइज, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एंड वाइल। जब एंड वाइल के ऊपर मूव करवाऊंगा तो उस वक्त फिर बहुत एग्जांपल्स कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक ही नहीं है एंड वाइल। जी बच्चों, हाउ यू आर गोइंग टू जज कि इधर दैट नंबर इज अ पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन? बड़ा बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है हमारे पास। राविश ने पूरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट हमें बता दी। आई डोंट वांट द सूडो कोड बच्चों, मुझे सूडो कोड नहीं चाहिए। मुजना ने भी हमें यहाँ पे लॉजिक बता दी। सिंपल सी लॉजिक है बच्चों, अगर वो नंबर 0 से लेस देन है, देन दैट नंबर विल बी नेगेटिव। देन दैट नंबर विल बी नेगेटिव, खत्म। इफ दैट नंबर इज लेस देन 0, देन दैट नंबर इज नेगेटिव। तो मैंने बच्चों क्या किया प्रॉपर, लेकिन मेथड आप लोगों को फॉलो करना है। सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैंने आउटपुट करवाया। देन
output, enter a number, and then I input num. Now I just need to check कि ये number क्या है आपके पास, तो मैंने यहाँ पे check कर लिया. If num is less than 0, then output negative, else output positive, or end this. And we are done. तो बच्चों, did you see the alignment over here again? If देखो कहां पर आया, then कहां पर आया, else कहां पर आया, और end if किस लाइन के अंदर आया. So you need to follow this alignment in paper 2 in A levels. ठीक है? अरे रख लेना भाई बाद में. भाई ऑन चाह रहे के प्रिंट नहीं यूज करना मलिक. प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करना अभी. बात की बात है वो. देखो सूडो कोड्स की एक बड़ी खूबसूरत सी बात है. सूडो कोड्स वो चले, मैं जब हम लोग क्लास के अंदर होंगे तो मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगा. मजा नहीं आएगा यहाँ पे बताने के ऊपर. तो सिंपल सा वैसे एक बात बता रहा हूँ कि सूडो कोड्स एवरीवन हैज देयर ओन लॉजिक्स टू सॉल्व. ठीक है. यहाँ पे आप लोग, मैंने यहाँ पे लेस देन 0 की लॉजिक लगाई. यू कैन ऑल्सो कीप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देन यू कैन प्रिंट पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, एंड देन आप एल्स के अंदर यू कैन प्रिंट नेगेटिव. सो योर कॉल, आपकी मर्जी होती है. सूडो कोड्स की ब्यूटी यही है हमारे पास कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे होते हैं. नाउ बच्चों, लेट्स परफॉर्म द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस सेशन. आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं. लेट्स सी. Input price and total items of a product from user from user display the discounted price of one item. Discount if number of items are greater than 20, then 7% discount, and if they are not greater than 20, then 3% डिस्काउंट आप लोग को यहाँ पे देना है. एंड व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस? डिस्काउंटेड प्राइस आप लोग को बच्चों शो करनी है यहाँ पे ओवर हियर. ठीक है. अगेन अ क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे. सो आई डिक्लेयर द वेरिएबल्स ओवर हियर.
declare discount discounted price and actual price, and इनकी डेटा बच्चों क्या होगी? It will be real, and I declare one more variable that will be total items and that will be integer. Now I ask your user to enter the values. Output, enter price and total items, and we input these both values. Input price comma total items. Now we need to apply the condition over here बच्चों. तो मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करी. लेट्स सी द कंडीशन. If total items are greater than 20, then discount will be equal to price multiply by 0.07. And if they are not greater than 20 बच्चों, then else discount will be equal to price 0.03. So this is how you have calculated बच्चों 3% and 7% of the total price. Now you need to calculate the discounted price. तो आप लोग अब easily calculate कर सकते हैं discounted price क्या है आपकी. आप यहीं पे end if करा इसको. Discounted price will be equal to the actual price minus the discount, and we need to display the discounted price. So output तो बच्चों ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, that is inverted commas. So this is actually our message. ये हमारा मैसेज है. And this part, this is the value. This is our value. So बच्चों this is how we perform the question. हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म कर लिया. हम लोगों ने यहाँ पे price and total item we ask the user to enter. Then we check if the total items are greater than 20. Then हमने 7% discount दे दिया. And if the items are not greater than 20, then we provided the discount with 3%. Then we calculated the discounted price by subtracting the discount from the actual price, and then at last we displayed the discounted price to the user. Alignment, indentation, input, declaration, ये सारी चीजें बच्चों आप लोग को आनी चाहिए. ठीक है. Sir on is asking कि
0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% डिस्काउंट नहीं हो जाएगा हमारे पास? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद 0.3 तो द डिस्काउंट विल बी 30% इंस्टेड ऑफ 3%. ठीक है हाशिर मलिक, ये देख लेना, जरा रिवाइज कर लेना. अच्छा जी, वन मोर थिंग सर, डिवाइड बाय टोटल आइटम्स, वन आइटम. हाँ मैंने वन आइटम मांगा है, ठीक है, मैंने सिर्फ एक प्राइस की वो मांगी है. ठीक है, तो यूजर ने भी जो एंटर करी है प्राइस, वो एक आइटम की प्राइस और टोटल आइटम्स कितने चाहिए वो एंटर करें. ठीक है ऑन. और हाँ बिल्कुल. राविश बेटा, ये अब मैं खैर मैंने अभी छुड़वा दिया यहाँ पे. इस इन स्पेसेस को हम लोग कुछ कहते हैं, अभी नहीं बता रहा. दीज स्पेसेस आर एक्चुअली कॉल्ड वाइट वाइट स्पेसिंग, वाइट शीट स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग हम लोग कहते हैं इसको. तो ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं. हाँ वाइट स्पेस कहलाती है आपके पास. तो अभी नहीं मैं डिस्कस कर रहा यहाँ पे, बाद में डिस्कस करूंगा वाइट स्पेसेस. ठीक है. तो बच्चों, एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था. आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग का आइडिया होगा यहाँ पे. और आई होप आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के आप लोगों का माइंड सेट बन रहा होगा कि हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू इनिशियलाइज, हाउ टू इनपुट, हाउ टू आउटपुट, हाउ टू अप्लाई द इफ देन एल्स स्टेटमेंट ओवर हियर. हसन, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी वैलिडेशन चेक ओवर हियर. अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे. जब करेंगे तो फिर आगे हल्के 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 टाइमली बहुत चीजें करनी है अभी. आई नो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन टाइम लगेगा बच्चों, बाकी ताकि बाकी बच्चे भी पैरेलल के अंदर हमारे पास लाइन अप हो जाए एंड वी आर ऑन टॉप देन. ठीक है, चलो. यस एग्जैक्टली उमर, आपको स्टार्टिंग के अंदर ही डिक्लेयर करना होगा. यू कैन नॉट डिक्लेयर एट द एंड. हाँ यू कैन लीव स्पेसेस और बाद में आप जो वेरिएबल यूज करें उनको डिक्लेयर करवा दें अलग से. दैट्स अ पॉसिबिलिटी जो बच्चे करते हैं जनरली हमारे पास, अच्छे बच्चे. तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. आई होप आप लोग को मजा आया होगा पेपर 2 के अंदर, और अभी बहुत मजा आने वाला है आगे जब हम लोग अभी और बहुत सारे क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल नाउ एंड इंशाल्लाह वी विल बी किकिंग ऑफ ऑन मंडे इंशाल्लाह. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय.